Hello students, in the previous lecture we were talking about biotechnology principles and processes. In this lecture we are going to talk about biotechnology and its application. So it is a new chapter we are going to talk about. Okay, so biotechnology में क्या किया जाता है वो previous lecture में अपने देख लिया. इस lecture में जो भी changes process के through जो product बनेंगे उन product की application क्या होगी, biotechnology की application क्या होगी in a larger area. ठीक है. So it's a new chapter. Biotechnology and its application. ठीक है. So initially जब बात करते जो सबसे बड़ा change आया था in the field of agriculture, एग्रीकल्चर के एरिया में या फील्ड में जो सबसे बड़ा चेंज आया था इनिशियली, दैट वाज ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन. ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, देयर वाज यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी. काफी सारी वैरायटीज अपन ने इंपोर्ट कराई थी बाहर से और उनको यूज किया. ठीक है. देन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स and pesticides. ठीक है. So this was one of the big change that was caused in the field of agriculture due to green revolution. जहां पे क्या यूज किया, use of improved crop varieties, use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. ठीक है. The second change in the field of agriculture was organic farming. Organic farming. ठीक है. The second biggest change was organic farming. और organic farming में क्या किया, there was use of manures, biofertilizers, biopesticides, and biopesticides. ठीक है. और जो बड़ा चेंज अब आएगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये चेंजेस आ चुके हैं. दिस चेंजेस हैव बीन डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बट अब जो नया चेंज आएगा, बड़ा सबसे बड़ा जो चेंज आएगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज गोइंग टू बी यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स. इट्स गोइंग टू बी दी use of genetically engineered plants. ठीक है. This is going to be biggest change in the recent times in the field of agriculture. So genetically engineered plants, that means biotechnology आ गया. ठीक है. समझ में आ गया. तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स है, जीएमओ, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जीएमओ, व्हिच इज गोइंग टू बी, आप प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड organism. Okay, if you alter the genetic makeup of a plant or an animal to get better outcome, better products out of that plant, so that particular plant is going to be termed as GMO, or that particular animal is going to be termed as GMO. If you change the genetic makeup of an animal to get high quality milk or high quality meat,
So you have modified that organism at the genetic level. That comes under biotechnology. ठीक है, and that animal is going to be termed as genetically modified organism. If you modify a plant to get better yield, to make it resistant to pest, so that particular plant is known as GMO, that is genetically modified organism. ठीक है, सो ये जो genetically modified organisms होते हैं उनके अंदर आप जीन को इंड्यूस करते हो, और कौन सा जीन इंड्यूस करते हो, तो आपको पता है ट्रांसजीन, ट्रांसजीन, ठीक है। ट्रांसजीन आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो, आपका डिजायर्ड जीन आप वेक्टर की मदद से इस प्लांट में डाल दोगे या उस एनिमल में डाल दोगे, ठीक है। तो जब आपका डिजायर्ड जीन वेक्टर के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है तो दैट इज अ ट्रांसजीन। सो जब ट्रांसजीन को आप होस्ट के अंदर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर इन अदर टर्म्स आई कैन ऑल्सो पुट इट एज आई गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आई गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। सो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बोल सकते हो, सिंपल एंड इजी। So we'll take some examples for plants जहां पे biotechnology use करा अपन ने and it has given us benefit or it has given benefit to the plants, ठीक है। So let's talk about okay, so one of the vector which is used in the plants, the vector is a bacteria known as Agrobacterium tumeficans या फिर tumeficans. So I'll put it as Agrobacterium tumeficans, ठीक है। Now यहाँ पे क्या है, this bacteria has a gene which causes tumors in the plant. This particular bacterium consists of tumor inducing gene, ठीक है। That means if this bacterium enters a plant, it causes tumors in the plant. That is not good. So this bacterium is not good because it is causing what? It is causing tumor. So if this bacterium enters a plant, it is termed as TI plasmid. It is termed as TI plasmid, that is tumor inducing plasmid. किसके पास है? With the tumor inducing gene जो है, ठीक है, tumor inducing plasmid जिसके पास क्या है, tumor inducing gene है। So when a plant is infected, with Agrobacterium tumeficans or the TI plasmid लिखता हूँ मैं। When the plant is infected with TI plasmid, a disease known as crown gall. This is the name of the disease. A disease known as crown gall is observed
in ठीक है, when a plant is infected with TI plasmid, a disease known as crown gall is observed in dicot plants. ठीक है, समझ में आ रहा है? जब ये बैक्टीरियम डाइकोट प्लांट के अंदर घुस जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा? ट्यूमर कॉज करेगा, एंड दैट डिसीज इज नोन एज द क्राउन गॉल. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव डन, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस है, इट हैज द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अ प्लांट. ठीक है, but the ability to cause tumor has been deleted from this plasmid. ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे with the help of biotechnology, with the help of biotechnology, the tumor causing ability of TI plasmid is deleted. ठीक है, मतलब अब क्या हो गया कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस है, ये प्लांट को इन्फेक्ट तो करेगा, प्लांट के अंदर एंटर तो हो जाएगा, बट it is not going to cause tumor because the tumor causing ability of TI plasmid is deleted. ठीक है, with the help of biotechnology. तो यहां पे मैंने इसकी जो एबिलिटी थी टू एंटर अ प्लांट, दैट इज एज इट इज, but the ability to cause tumor is deleted with the help of biotechnology. So now agrobacterium tumificans is used as what? It is used as a vector. इसको एज अ वेक्टर यूज किया जाता है. ठीक है, और जैसे कि ये जो यहां पे क्या कर रहा था, कौन से प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था? डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा था. तो व्हेन यू यूज इट एज अ वेक्टर, इन दैट केस ऑल्सो इट कैन एंटर द डाइकोट प्लांट्स only. It can enter the dicot plants only. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस को यूज कर रहे हो एज अ वेक्टर, सो मेक श्योर जो प्लांट आप सामने यूज करोगे, इट शुड बी अ डाइकोट प्लांट. इट शुड नॉट बी अ मोनोकोट प्लांट, बिकॉज दिस बैक्टीरियम कैन नॉट इन्फेक्ट अ मोनोकोट प्लांट. इट कैन ओनली इन्फेक्ट द डाइकोट प्लांट. ठीक है, ये बात आपको काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी पड़ेगी. क्लियर है? तो आपने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो एबिलिटी थी ट्यूमिफिकांस की, ओके, दैट वाज टू इंड्यूस ट्यूमर इन द प्लांट, उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया. बट द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द प्लांट इज स्टिल एज इट इज. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज इट एज अ वेक्टर. नाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस को एज अ वेक्टर यूज करके वी हैव मेड नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स. नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स have been developed by using agrobacterium tumificans as a vector. ठीक है, so there is a nematode known as Meloidogyne incognita. Incognita. This is the name of the nematode. ठीक है,
It is a parasite which resides in the root of the plant. It is a parasite residing in the root of plant. ठीक है, मतलब पैरासाइट तो आपको पता है द सोर्स ऑफ फूड फॉर दिस नेमाटोड इज गोइंग टू बी द प्लांट. तो प्लांट की रूट में रहता है. ओके, पैरासाइट रिसाइडिंग इन द रूट ऑफ द प्लांट. और करता क्या है, फीड तो करता है उसके ऊपर, बट इट ऑल्सो कट्स द रूट of the plant. It cuts the root of the plant, and that infected region of root swells up. The infected region of the root swells up. ठीक है. So Melidogyne incognita, which is a nematode, it resides in the, it's a parasite residing in the roots of the plant. और क्या करता है, प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है और प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उसके डैमेज कर देता है. ठीक है, तो जो डैमेज पोर्शन होता है रूट का वो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट स्वेलिंग अप. सो जो प्लांट की रूट है उसमें इस तरीके से बल्ज आ जाता है. द रूट ऑफ द प्लांट शोज बल्जिंग लाइक दिस. जहां जहां पे कट लगा है, जहां जहां पे इन्फेक्शन हुआ है. एंड दिस डिसीज इज नोन एज द रूट नॉट डिसीज. डिसीज का नाम क्या है, इट इज द रूट नॉट डिसीज. ठीक है, तो आपको ये भी याद रख सकते हो कि यार रूट नॉट डिसीज किसने कॉज किया है, तो नेमाटोड. कौन सा नेमाटोड है, तो मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा नाम का नेमाटोड है जो रूट में रहता है और पैरासिटिक है. ठीक है, सो दिस इज द हार्म इट इज कॉजिंग. नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब इससे रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया. ठीक है, और वहां पे जो टेक्निक अपन ने यूज करी है टू मेक अ नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, द टेक्निक विच इज यूज्ड इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. इसको मैं रब करता हूं और यहां लिखूंगा नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट इज डेवलप्ड using RNA interference technique. RNAi लिखा जाता है. ठीक है, इस टेक्निक को यूज करके वी हैव डेवलप्ड अ नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट. तो फर्स्ट वी नीड टू नो ये टेक्निक है क्या, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की बात करते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाता है. सो नाउ अब ध्यान से सुनना. व्हेन dsRNA enters the cell, अगर आप कोई DS डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सेल के अंदर डालते हो तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर जो डाइसर प्रोटीन्स होते हैं दे बाइंड विद द डबल स्टैंडर्ड आरएनए. द डाइसर प्रोटीन्स bind with double stranded RNA and
cut it into small fragments of double stranded RNA. ठीक है, तो जो डाइसर प्रोटीन सेल के अंदर अवेलेबल है वो क्या करेगा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ cuts it into small fragments of double stranded RNA. ठीक है, getting the whole idea. तो ये जो small segments बने of double stranded RNA, they are termed as small interference RNA. ठीक है, they are termed as small interference RNA. ठीक है, इतना समझ में आ गया. डाइसर प्रोटीन जो होता है वो सेल के अंदर अवेलेबल है. डाइसर प्रोटीन that is already available in the cell. So whenever we induce or when we put a double stranded RNA in the cell, there is the dicer protein that binds with the double stranded RNA and cleaves it or cuts it into small fragments. Those small fragments are termed as small iRNA. ठीक है, is it clear? Now this small iRNA fragments जो होते हैं, they bind with a protein complex. They bind with a protein complex and they form RISC. यहां लिखूंगा मैं, small iRNA जो डबल स्टैंडर्ड ही है, binds with specific protein complex, multi protein complex. It's a multi protein complex, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं. Small iRNA binds with multi protein complex. ठीक है, and forms एक अब नई चीज बनेगी, that is termed as RNA interference silencing complex. RNA interference silencing complex. RNA interference silencing complex, which is termed as RISC. It is termed as RISC. ठीक है, ये RISC क्या करेगा, जो डबल स्टैंडर्ड RNA फ्रेगमेंट्स थे उनको सिंगल स्टैंडर्ड कर देगा. तो यहां पे मैं लिखता हूं, now unwinding of double stranded RNA takes place. ठीक है, सो अब क्या अवेलेबल है, डबल स्टैंडर्ड से क्या बचा, नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA fragments. Single stranded RNA fragments are available in cytoplasm. ठीक है, नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA fragments are available in the cytoplasm. क्योंकि क्या हो चुका है, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA था उसका अनवाइंडिंग हो गया. ठीक है, अभी नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA fragments are available in the cytoplasm. ठीक है, तो काफी सारे जो डबल स्ट्रैंडेड RNA था अब वो क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बन चुका है. काफी सारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में. ठीक है, नाउ इफ द मैसेंजर RNA इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन हुआ है, और वो मैसेंजर RNA जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है, जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, लेट्स से दिस इज अ मैसेंजर RNA.
जो अभी फ्रेशली बन के कहां से आया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने थे, ये प्रोसेस के थ्रू जो छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स बने थे, वो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दिखाएंगे, क्योंकि आरएनए के पास काफी सारे सीक्वेंस पे, लेट्स से अगर मैं बोलता हूं ये जो आरएनए का सीक्वेंस है, जो फ्रेशली न्यूक्लियस से बन के बाहर साइटोप्लाज्म में आया है, उसके ऊपर का कोडिंग क्या है, तो उसके ऊपर का कोडिंग लिखते हैं AGCCAAUAU, ठीक है। तो लेट्स से यहां पे किसी के पास अगर कॉम्प्लीमेंट्री कोड हुआ तो वो क्या करेगा, इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, ये आके यहाँ पे बाइंड हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा, दिस इज UCGG, दिस इज गोइंग टू बी UUAU, ठीक है। सो जो फ्रैगमेंट्स आपने बनाए थे आरएनए के, इफ दैट फ्रैगमेंट कंटेन्स द कॉम्प्लीमेंट्री कोड, इट इज गोइंग टू बाइंड विद द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहां जा रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जा रहा था, राइबोसोम के पास जा रहा था ट्रांसलेशन के लिए। अब ये आगे इससे बाइंड हो गए। तो मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड था, बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नाउ इट हैज बिकम व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड बन चुका है। अब इसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, आपका मैसेंजर आरएनए इनएक्टिव हो गया। तो जो भी प्रोटीन बनने वाला था, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन वो मैसेंजर आरएनए अपने साथ लेके आया था, राइबोसोम के पास जा रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, मैसेंजर आरएनए को, आपने इस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर दिया, आपने इसको साइलेंस कर दिया। दिस इज नोन एज मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है। ये जो फ्रैगमेंट्स थे जो आपने सेल के अंदर इंड्यूस किए थे, डबल स्ट्रैंडेड जो थे पहले, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंडिंग करा और उसको इनएक्टिव कर दिया, उसको साइलेंस कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने लिख दिया, मैं आगे लिखता हूं। सो क्या लिखेंगे, समझ में आ गया ना आपको, ये जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया साइटोप्लाज्म में, उसके साथ जो फ्रैगमेंट्स थे, यहां पे जो अपन ने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की बात करी थी, वो फ्रैगमेंट्स बाइंड हो जाएंगे। क्या लिखते हैं, व्हेन मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड from nucleus and reaches cytoplasm from nucleus and reaches the cytoplasm, the single stranded RNA segments binds with the complementary sequence, present on मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस होगा उसके साथ अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो ये जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। segments bind with the complementary sequence present on the messenger RNA, ठीक है। and at the places of binding, with the help of RNase enzyme, they cut the messenger RNA. They cut the messenger RNA into fragments. ठीक है। तो पूरा जो मैसेंजर आरएनए था वो टूट जाएगा।
तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या था? प्रोटीन बनाना, पर अब वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि क्या हो गया? आरएनएस एंजाइम की मदद से जो मैसेंजर आरएनए था उसके फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं with the help of the RNase enzyme at the places of binding. With the help of RNase enzyme they cut the messenger RNA into fragments. ठीक है? So अगर फ्रेगमेंट में कट हो गया तो आप क्या लिखेंगे? मैसेंजर आरएनए cannot perform photosynthesis. I'm sorry, cannot perform protein synthesis, not photosynthesis. It cannot perform protein synthesis. ठीक है? So this is known as what? This is known as silencing of messenger RNA. This is known as silencing of messenger RNA. तो अगर आप सोचो, अगर ये मैसेंजर आरएनए कोई टॉक्सिक प्रोटीन बनाता, ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू आप उस मैसेंजर आरएनए को भी क्या कर सकते थे? आप साइलेंस कर सकते थे। अगर वो मैसेंजर आरएनए के पास टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती तो आप ये टेक्निक के थ्रू उस मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इफ आरएनए मैसेंजर आरएनए वाज गोइंग टू मेक टॉक्सिक प्रोटीन्स, है ना, तो याली टेक्निक के थ्रू आप उसको साइलेंट कर देते और वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, सो दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। यहां पे आरएनए की जो फ्रेगमेंट्स थे उनने इंटरफेयर किया कौन से प्रोसेस के साथ? प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड हो गए और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया। ठीक है, सो वी यूज दिस टेक्निक टू डेवलप द नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अपन ने यही टेक्निक को यूज किया टू डेवलप व्हाट? नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। किस तरीके से? तो यहां पे वी यूज द एग्रोबैक्टीरियम। किसको यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर एंड नेमाटोड स्पेसिफिक जीन is transferred to the plant by using agrobacterium as a vector, because it has the ability to infect the plant, but ये ट्यूमर कॉज नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है? अपना डिजायर्ड जीन कैरी कर रहा है। So by using agrobacterium as a vector, nematode specific gene is introduced in plant। कहां पे इंट्रोड्यूस किया आपने? प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर, द नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस इन द प्लांट। ठीक है, दैट इज डीएनए सेगमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी जो डीएनए सेगमेंट है ये क्या करेगा? इसके दोनों सेगमेंट से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। दोनों सेगमेंट से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब the sense and the antisense part of the DNA is going to make the messenger RNA। मैं लिखता हूं sense and antisense DNA introduced in plant makes 2 copies of RNA। ठीक है, 2 कॉपीज बनेगी आरएनए की, दैट इज एंटीसेंस आरएनए एंड
सेंस आरएनए। तो अगर डीएनए के स्ट्रैंड से, अगर डीएनए की स्ट्रैंड से एक डीएनए की स्ट्रैंड से नॉर्मली क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहां पे क्या करेंगे, एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ये एक ही डीएनए से बना है ना, तो ये दोनों क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां पे दिखाते हैं अपन, ये जो डीएनए था इससे क्या बनाया अपन ने, दो मैसेंजर आरएनए बनाए या दो आरएनए बनाए। ये दोनों आरएनए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आरएनए एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे। दिस बोथ द आरएनएस आर गोइंग टू बाइंड विथ ईच अदर। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, ये आरएनए और ये आरएनए। जब दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, जो इनका एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। दोनों क्या हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। सो द टू मैसेंजर आरएनए आर फॉर्म्ड व्हिच लेटर ऑन बाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मैं लिख देता हूं, टू मैसेंजर आरएनए बाइंड एंड फॉर्म a double stranded RNA। या क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, जो आरएनए था, दिस आरएनए हैज बीन साइलेंस्ड। आरएनए, मैसेंजर आरएनएस, ठीक है, बिकॉज आपने इसको क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। समझ में आ गया। सो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स रिलीज हुई थी, ये दोनों स्ट्रैंड्स बाइंड करेगी मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, और बाइंड करने के बाद क्या बना देगी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगी, जो कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और जो प्रोटीन बनने वाला था वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वो प्रोटीन जो प्लांट की रूट में स्वेलिंग कॉज करता था, प्लांट की रूट को डैमेज करता था, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया। सो दिस इज द वे देयर इज साइलेंसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए टेकिंग प्लेस इन द प्लांट, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी। Done? Okay, so this was one of the application, that is development of a nematode resistant plant. एक और चीज अपन ने करी है, that is we have developed BT cotton। क्या बनाया है, BT cotton बनाया है। और ये जो BT cotton है, ये जो बीटी कॉटन है, इसमें बीटी रिप्रेजेंट किसको करता है, इट रिप्रेजेंट्स बेसिलस thuringiensis। It represents Bacillus thuringiensis। This is a bacteria। और ये जो बैक्टीरिया है ये करता क्या है, सो दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सिक प्रोटीन्स। इसका काम क्या है, प्लांट में एंटर होने के बाद
produces toxic proteins. और ये जो toxic proteins होते हैं, these toxic proteins have the ability to kill proteins have the ability to kill pest. So they have the ability to kill lepidopterans, they have the ability to kill lepidopterans. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं बॉलवॉर्म्स एंड आर्मीवॉर्म्स. ठीक है, बॉलवॉर्म्स, आर्मीवॉर्म्स एंड डिप्टेरेंस. इसके एग्जाम्पल में लिखूंगा इंसेक्ट एंड फ्लाइज. इंसेक्ट एंड फ्लाइज. ठीक है, आई कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ बीटल्स. ठीक है, तो ये जो बेसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिक प्रोटीन. ठीक है, और ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है इसमें क्या एबिलिटी है? इट हैज द एबिलिटी टू किल बॉलवॉर्म्स, आर्मीवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड बीटल्स विच आर वर्किंग एज अ पेस्ट विच आर डैमेजिंग द प्लांट. कौन से प्लांट को? कॉटन प्लांट को, या फिर आप ब्रिंजल प्लांट भी ले सकते हो, उनको ये डैमेज कॉज करते हैं. बट ये जो बैक्टीरिया है इसके पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिक प्रोटीन जो इन चीजों को मार सकता है. ये चीजें क्या कर रही है? दे आर कॉजिंग हार्म टू द प्लांट्स. क्या लिखेंगे? कॉज हार्म टू प्लांट्स. ठीक है, दे आर पेस्ट. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने जो बेसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया था उसके अंदर से जीन निकाला, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन बनाने के पीछे कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है. तो जो जीन या प्रोटीन को बना रहा था उस जीन को निकाल लिया, और उस जीन को निकाल के कहां पे डाल दिया? उसको प्लांट में डाल दिया. उसको डाल दिया कॉटन प्लांट के अंदर. तो अब इस कॉटन प्लांट के पास भी कौन सा जीन आ गया? जो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है. और ये प्लांट भी क्या करने लगा? टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग गया. तो अगर ये इंसेक्ट्स, पेस्ट आके कॉटन को खाते, कॉटन की स्टेम को कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? जो टॉक्सिक प्रोटीन था उनकी बॉडी में चला जाएगा और उनके इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो पेस्ट है उनकी डेथ हो जाएगी, तो प्लांट बच जाएगा. अरे बात समझ में? तो ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है इसके पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज क्राई जीन. कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? स्मॉल लेटर्स में आप लिखोगे क्राई जीन. ठीक है, CRY इज गोइंग टू बी इन स्मॉल लेटर्स. और ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नोन एज क्राई प्रोटीन. द प्रोटीन इज नोन एज क्राई प्रोटीन. क्राई प्रोटीन का C आपको कैपिटल में लिखना है और क्राई जीन का C आपको स्मॉल लेटर्स में, ये पूरा स्मॉल लेटर्स में रहेगा और ये फर्स्ट अल्फाबेट इसका कैपिटल्स में रहेगा. ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं वो टॉक्सिक प्रोटीन कौन सा है? दैट इज द क्राई प्रोटीन एंड इट इज मेड or it is coded by the gene that is cry gene, and this cry gene is present with the DNA of Bacillus thuringiensis. तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस क्राई जीन को निकाल के कहां इंसर्ट कर दिया? इसको इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर, यानी एग्जांपल में कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया.
अब कॉटन प्लांट के पास एबिलिटी आ गई टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन, और ये टॉक्सिक प्रोटीन अब क्या करेगा, इन चीजों को मार देगा, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये प्रोटीन टॉक्सिक है तो ये खुद क्यों नहीं मर जाता है ना। मैंने बोला कि यार ये टॉक्सिक प्रोटीन से ये इन चीजों की डेथ हो जाएगी जब ये इसे कंज्यूम करेंगे। तो यार बेसिलस थुरिनजेनेसिस भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया, तो उसकी भी डेथ हो जानी चाहिए, उसकी डेथ क्यों नहीं होती। सो द आंसर टू दिस इज बेसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूसेस टॉक्सिक प्रोटीन इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन्स को क्या कहा जाएगा, प्रोटोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, चलो इतना मैं अब रब कर देता हूं। क्या लिखेंगे, बेसिलस thuringiensis produces toxins in inactive form. Okay, so inactive toxins को क्या कहा जाता है, they are termed as prototoxins, they are termed as prototoxins। मतलब बेसिलस थुरिनजेनेसिस जो टॉक्सिन बनाएगा कौन से फॉर्म में बनाता है, वो बनाता है उसे इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, दैट इज डिटर्मिन्ड एज प्रोटोटॉक्सिन। नाउ दिस प्रोटोटॉक्सिन when eaten up by the insects, when eaten up by the पेस्ट लिखते हैं, ठीक है। प्रोटोटॉक्सिन्स व्हेन ईटन बाय द पेस्ट गेट्स द alkaline pH in the intestine of pest। जब वो प्रोटोटॉक्सिन पेस्ट के इंटेस्टाइन में जाता है तो पेस्ट के इंटेस्टाइन में क्या होता है, एल्कलीन पीएच होता है, ठीक है। सो ये एल्कलीन पीएच क्या करता है, प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है और प्रोटोटॉक्सिन क्या बन जाता है, टॉक्सिन बन जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं एल्कलीन पीएच एक्टिवेट्स द prototoxin and converts it into एक्टिव टॉक्सिन। उसको इनएक्टिव से किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया, किसने, एल्कलीन पीएच ने, ठीक है। अब ये टॉक्सिन क्या करता है, ओके, इट कॉजेस स्वेलिंग अप एंड लाइसिस ऑफ द सेल, इट कॉजेस टॉक्सिन causes swelling of cell which later on leads to lysis of cell, ठीक है। क्या हो जाएंगे, लाइसिस हो जाएगी सेल के अंदर, कौन से सेल है, इंटेस्टाइन के सेल है। सो द टॉक्सिन जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, कौन से फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटोटॉक्सिन था, जब उसको एल्कलीन पीएच मिला तो वो क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, इट्स एक्टिव टॉक्सिन नाउ। ये सब कहां पे हुआ, इन द इंटेस्टाइन ऑफ द पेस्ट, इन द इंटेस्टाइन ऑफ द पेस्ट, ठीक है। तो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा, द टॉक्सिन कॉजेस स्वेलिंग ऑफ सेल विच लेटर ऑन लीड्स टू लाइसिस ऑफ द सेल, जिससे क्या हो जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा, और सेल का लाइसिस होने की वजह से क्या होगा, देयर इज पोर फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन,
pore formation in इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन रप्चर हो जाएगा। अगर इंटेस्टाइन में काफी सारे पोर्स हो जाएंगे तो इंटेस्टाइन बेकार हो जाएगा, इंटेस्टाइन रप्चर हो जाएगा, इंटेस्टाइन कुछ काम का नहीं रहेगा, और जो पेस्ट है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो बैक्टीरिया को क्यों हार्म नहीं कर रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया उसे इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है, बट जैसे ही उसे इंटेस्टाइन में, पेस्ट के इंटेस्टाइन में अल्कलीन पीएच मिलेगा तो वो प्रोटोटॉक्सिन से कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन में, और टॉक्सिन्स क्या करेंगे? स्वेलिंग ऑफ द सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, सेल स्वेल होने लगेगी इंटेस्टाइन को, फिर क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पोर फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन ऑफ द पेस्ट, इंटेस्टाइन ऑफ पेस्ट। दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द पेस्ट। पेस्ट की क्या हो जाएगी? डेथ ऑफ पेस्ट। समझ में आ गया? तो यानी जीन को साइंटिस्ट लोग ने, कौन सा जीन था? क्राई जीन था, इसको उठा के कहां डाल दिया है? कॉटन में डाल दिया है, ब्रिंजल में डाल दिया है। अब कॉटन और ब्रिंजल के पास एबिलिटी है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की। कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही जाएगा पेस्ट के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, क्राई जीन क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन बनाएगा। We have varieties of gene available. Cry gene is going to make what? It is going to make cry protein. ठीक है, cry proteins. तो यहां पे we have specific genes available. जैसे if I talk about cry gene, cry 1 कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, या फिर cry 2 कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है। अगर ये दोनों जीन अवेलेबल है इन दी बैक्टीरिया, तो ये जीन के पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स टू किल कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक मैं लिख रहा हूं कि अगर ये वाले जीन प्रेजेंट है तो जो प्रोटीन बनेगा, जो टॉक्सिन बनेगा, वो किसको किल करेगा? इट किल्स कॉटन बॉलवॉर्म्स। और अगर क्राई 1AB नाम का जीन प्रेजेंट है तो इससे जो प्रोटीन्स बनेंगे, जो टॉक्सिन्स बनेंगे, वो किसको मारेंगे? इट किल्स अ पेस्ट नोन एज किल्स कॉर्न बोरर। किसको किल करेगा? कॉर्न बोरर को किल करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्राई जीन जो बैक्टीरिया में अवेलेबल था उसको कहां पे ट्रांसफर किया? प्लांट्स में ट्रांसफर किया। ठीक है, एंड नाउ द प्लांट्स आर आल्सो एबल टू प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन्स और द टॉक्सिन्स। ठीक है, वी हैव वेराइटीज, 3 वेराइटीज अवेलेबल है। अगर ये क्राई 1A स्मॉल ए एंड क्राई 2 कैपिटल ए स्मॉल बी है तो जो प्रोटीन बनेगा, जो टॉक्सिन बनेगा, वो क्या करेगा? वो कॉटन बॉलवॉर्म्स को मारेगा। और अगर क्राई 1 कैपिटल ए स्मॉल बी है तो जो टॉक्सिन बनेगा वो किसको मारेगा? कॉर्न बोरर नाम के पेस्ट को मारेगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो अब होगा क्या? अल्टीमेटली इफ द पेस्ट आर नॉट प्रेजेंट, द पेस्ट आर किल्ड, दिस इज गोइंग टू increase the yield. There is going to be increase in the yield of the crop. ठीक है, that is good, that is benefit for us. ज्यादा कॉटन मिलेगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। मैं बता रहा था कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो था
जब उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को आपको इस सेल में डालते हो, ठीक है, सो उसका जो डीएनए होता है दैट इज नोन एज टी डीएनए। क्या बोलेंगे उस डीएनए को? टी डीएनए कहा जाएगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डीएनए इन दी वेक्टर। ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, विल कीप दिस, इसको अपन बाद में देख लेंगे, विल कीप दिस मच। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करके, और दूसरा वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बीटी कॉटन, दैट इज बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। Clear है? So this were the two important techniques and the two important crops that have been formed with the help of genetic engineering. ठीक है, so I hope आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, so in the next lecture we'll move ahead and talk about the new topics. So आज के लिए I'll keep this much. Okay, thank you, bye bye.